ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھیر گھیر کر آتے گھنگھور سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو نظر سے اوجھل کر دیا تھا۔ ہوائیں سب کچھ تہ و بالا کرنے کے در پہ تھی۔ بادلوں کی گھن گھرت سن کر زیبا صحن میں آئی تھی۔ تفکر سے آسمان کی سمت نگاہ کی، لیکن فضا میں اڑتی ریت اور مٹی کو محسوس کرتے ہی اس نے بے ساختہ آنکھیں میچ لی تھیں۔ طوفان کی چلتی ہوئی ہوا کو کسی زی روح کا احساس کہاں تھا؟ امی آپ اندر آ جائیں، آپ کی آنکھوں میں مٹی چلی جائے گی۔ ننھا حاشر اسے برآمدے سے صحن کی طرف کھلی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور اب فکر مندی سے چلا کر بولا تھا۔ وہ مسکرائی۔ سچ تھا، طوفان کی مٹی آنکھوں میں چبھی تو آنکھیں کھلی رکھنا محال تھا، لیکن اسے تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں تکلیف کے ہر احساس سے عاری ہو چکی تھیں۔ وہ کرچیاں جو اسے بہت ہی تکلیف دے کر بھی اس کی بصارت کو مزید تیز کر رہی تھیں، کرچیاں بھی وہ جو اس کے اپنے نہیں بلکہ کسی اور کے خوابوں کی تھیں، اور کسی اور کے ٹوٹے ہوئے خواب جو آپ کی ذات سے منسلک ہوں۔ تو اس نے اپنی بے ربط اور بے موقع سوچوں کو جھٹکا اور جلدی جلدی رسی پر سے کپڑے اتارے اور اندر کی جانب بھاگی۔ دونوں بچے بھی باہر آنا چاہتے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے انہیں سیاہ آسمان سے ڈرانا چاہا۔ وہاں اندھیرا تھا، گھور اندھیرا۔ آج آسمان پر شام سے پہلے ہی رات اتر آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات آسمان پر نہیں، اس کے دل پر اترے گی۔ امی مجھے بارش میں نہانا ہے۔ ننھے حاشر اور مصطفیٰ نے ماں کو صحن سے ملے ہوئے گول برآمدے میں اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ دونوں بھائی کھڑکی کو چھوڑ کر مچل مچل کر اپنی ماں سے فرمائش کر رہے تھے، جو اتنی ناجائز بھی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھوں میں موجود کپڑے جو اچانک بوچھار سے گیلے ہو گئے تھے صحن اور برآمدے کو الگ کرتی لوہے کی سیاہ گرل پر پھیلائے۔ کپڑے رکھ کر وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو رہی تھی کہ لائٹ غائب ہو گئی۔ زیبا اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے فریج کی جانب مڑی اور اوپر سے موبائل اٹھا کر ٹارچ جلائی تھی۔ اللہ، پتہ نہیں کب آئے گی لائٹ، زیبا فکر مندی سے بڑبڑائی۔ نگاہ برآمدے کے ایک کونے میں پڑی سلائی مشین کی جانب تھی۔ بڑے بنگلے کے رہائشی ہاجرہ خاتون کے بیٹے کی شادی تھی۔ کل ہر حال میں کچھ کپڑے سی کر دینے تھے۔ امی بارش میں نہانا ہے۔ حاشر نے پھر وہی بات دہرائی۔ امی مجھے پکوڑے کھانے ہیں۔ مصطفیٰ پیدائشی چٹورا تھا۔ بارش کے بہانے پکوڑے جو کھانے کو ملتے تھے وہ یہ موقع کبھی ضائع نہیں کرتا تھا۔ زیبا مسکرائی۔ میں پکوڑے بنا دیتی ہوں، لیکن کوئی بارش میں نہیں نہائے گا۔ طوفانی بارش ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے۔ اللہ سے خیر کی دعا کرو، اور یہ بھی کہ لائٹ جلدی آ جائے۔ مجھے کچھ کپڑے سینے ہیں۔ امی آپ کتنی بور ہیں نا، ہر وقت سلائی کرتی رہتی ہیں۔ آج چھوڑیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار حاشر اپنی ماں کو اداس دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ ہاں چلو حاشر، چلو کچن میں چلتے ہیں، پھر بابا کو اٹھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ذہن میں دل میں کتنی ہی ایسی باتیں گھوم گئی۔ حاشر اس کا ہی تو پرتو تھا، وہ بھی تو ایسی ہی تھی، قدم قدم پر اپنی ماں کو کہنے والی۔ امی آپ کتنی بور ہیں، آپ کو سوائے گھر، کچن اور ان پھول پودوں کے سوا اور کسی چیز سے واسطہ نہیں۔ امی آپ کو تو شاید پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے موسم گزر گئے ہیں۔ سرما کی شامیں کتنی اداس ہوتی ہیں، گرمیوں کی لمبی دوپہریں یادوں کے کتنے درد وا کرتی ہیں۔ خزاں کی سپیروں میں صحن کے وسط میں سرسراتے زرد پتے کہتے ہیں کہ زندگی پل پل بدلتی ہے۔ امی زندگی پل پل بدلتی ہے امی، آپ کو کیا ہے، آپ کیوں ایسی ہیں؟ وہ پھر سوچ کے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ اسے تو یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ مائیں، یہ بھولی مائیں موسموں سے بے خبر ہیں، بے نیاز ہوتی ہیں۔
जब जब मौसम करवट बदलते हैं तो पहली आहट वही तो सुनती हैं। ज़ेबा की सोच के धारे फिर मैके में जा अटके। माँ का ख्याल आते ही उसके लब मुस्कुराने लगे थे, आंखों में चमक दर आई थी। हाशिर, अब बाबा को उठाओ, मैं खाना निकालती हूँ और पकोड़े भी बनाती हूँ। तेजी से हाथ चलाते हुए हाशिर से कहा। वो अब जल्दी से माँ के पास जाना चाहती थी। सोच के धारे को वहीं से जोड़ा। अब वो हर बात की तलाफी करेगी। अपने और माँ के खूबसूरत लाजवाल रिश्ते पर पड़ी गर्द को जरूर साफ कर देगी। कल जब सीमा से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने तहैया किया था। अभी वो सोच ही रही थी कि मुराद और हाशिर एक साथ किचन में दाखिल हुए। घर से फोन है तुम्हारे। बेसाखी संभालते मुराद ने फोन आगे बढ़ाया। कैसे दिल से दिल को राह होती है। उसने बेकरारी से अपने गीले हाथ दुपट्टे से खुश्क किए। हेलो, ज़ेबा ने कहा था और साथ ही उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर सी हुई। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके होंठ एक दूसरे में पेवस्त हो चुके थे। आंखें वहशत से फट रही थीं। उसका फोन उसके हाथ से छूटा और साथ ही वो भी जमीन बोस हो चुकी थी। मुराद ने बड़ी मुशक्कत से ज़ेबा को उठाकर बरामदे में पड़ी हुई चारपाई पर लेटाया और हाशिर से पानी लाने को कहा। ज़ेबा, ज़ेबा क्या हुआ? खैर है सब? मुराद उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। हाशिर पानी ले आया था। मुराद ने ज़ेबा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो कुछ देर में होश में आई थी, लेकिन निगाहें हनूज सर्द व जामिद थी। क्या हुआ ज़ेबा? घर से किसका फोन था? क्या हुआ है? मुराद ने एक साथ कई सवाल किए। मुराद, ज़ेबा की आवाज हलक में ही घुट गई थी। अम्मी नहीं रही, वो बमुश्किल टूटे फूटे लफ्ज कह पाई। मुराद ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। कुछ अरसा हुआ था वो तारिक भाई की शादी में उनसे मिली थी, लेकिन ऐसे जैसे किसी अजनबी से मिलते हैं। उन्होंने बहुत रोका लेकिन वो रुकी नहीं। बच्चों के स्कूल, उसकी सिलाई का खर्च, ये तो सिर्फ बहाना था। सिर्फ ज़ेबा जानती थी कि वो अपनी माँ के सामने जाने से किस कदर कतराती थी। उनके सभी नौरानी चेहरे को देखते ही इसके अंदर के एहसास मलामत जाग जाता। इसे लगता वो उनकी मुजरिम है। उन्होंने तो कभी एक लफ्ज़ शिकायत का नहीं कहा था, लेकिन ज़ेबा की तो जिंदगी यही सोच सोच कर गुजर रही थी। उसके अलावा अब्बू के लिए दिल में शिकायत ही शिकायत थी। रात भर बरसती तूफानी बारिश जो किसी अनहोनी का ही संदेशा लाई थी, अब थम चुकी थी। मौसम साफ था। सूरज पूरी आबोताब से अपने होने का ऐलान कर रहा था। वो आज सुबह ही कराची जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुकी थी। 1.5 दिन की मुसाफत तय करके वो बिलाखिर कराची पहुंची। लोहे का आहनी कत्थई दरवाज़ा अपना रंग खो चुका था, लेकिन मैके का वो दरवाज़ा ज़ेबा को किसी साइबान से कम नहीं लगता था। लेकिन आज उस दरवाजे पर पहुंचते ही कब से साकित वजूद जलजलों की जद में था। वो लरज रही थी। कदमों में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि दरवाज़ा पार करती। वो अपनी तमाम हिम्मत यकजा करके आगे बढ़ी। सहन के बीचों बीच उसकी माँ का जनाजा रखा था, सफ़ेद कफन में लिपटा। उसके हलक से चीख निकली और वो वहीं बैठती चली गई। ज़ेबा को यूं देखकर उनके अब्बू, ताई अम्मी और दूसरी रिश्तेदार खवातीन आगे बढ़ीं। सहारा मिलते ही वो फूट फूट कर रो दी थी। फिसूं खेज सी रात थी। चांद अधूरा उदास नजर आता था। शायद उसका भी कोई अपना कहीं दूर हमेशा के लिए खो गया था। ज़ेबा अपने बरामदे में रखे तख्त पर बैठी यकटक चांद को तक रही थी। उसने कितनी देर कर दी थी यहां आने में। वो अपनी माँ से बहुत सी दिल की बातें कहना चाहती थी, लेकिन बाबा अभी सोने गए थे। तारिक भाई रोजी रोटी के सिलसिले में दूर देश के हो गए थे। वो इतने दूर और मसाइल में घिरे थे कि माँ के जनाजे में भी नहीं आ पाए। दिल को किसी पल करार नहीं था।
وہ اداس تنہا چاند میں نہ جانے کیا کیا منظر کھوجنے لگی تھی۔ قدیم طرز پر بنا 4 بڑے بڑے کشادہ کمروں کے بعد بڑا سا برآمدہ جس کے اختتام پر محرابوں کی آرائش تھی۔ پہلی سلیٹی مائل گول محرابیں جن کو پکڑ کر گول گھومتے گھومتے زیبا کا بچپن گزرا تھا۔ برآمدے کے فوارے کے بعد چند سیڑھیاں تھیں جو صحن میں اترنے کی دعوت دیتی تھیں، اور صحن وہ وسیع صحن جس کے کنارے پر بنی چوڑی کیاریاں جن کی آبیاری زیبا کی ماں باقاعدگی سے کرتی تھیں۔ بے فکری سے دھانی آنچل لہراتی، یہاں سے وہاں گول گول چکراتی ہوئی طارق بھائی سے ضد کر رہی تھی۔ گلی میں گول گپے والا آیا ہے، دلا دو۔ ابا سخت گیر تھے سو اسے اجازت نہ تھی کہ گلی میں قدم بھی رکھتی، اسی لیے طارق بھائی کی منتیں کرتی نظر آتی۔ ارے لے دینا بچی کو۔ دادی جن سے اس کی کبھی نہیں بنتی تھی، لیکن گول گپے کی شراکت انہیں اس کی حمایت پر مجبور کرتی۔ دیکھ لیں امی، اگلے ہفتے سے پیپر ہیں اس کے، کوئی ہوش ہے سوائے گول گپوں کے؟ طارق بھائی پورے گھر کو یاد دلاتا نہ بھولتے کہ زیبا کے امتحانات ہونے والے ہیں، اور صدا کی پڑھائی چور زیبا کا پڑھائی کے نام پر برا سا منہ بن جاتا، اور امی ہمیشہ کی کم گو پڑھائی کا نام سنتے ہی زیبا کو نصیحت کرنا نہ بھولتی۔ بیٹا پڑھو گی کب؟ پیپر ہونے والے ہیں۔ ارے کیا فائدہ لڑکیوں کی پڑھائی کا؟ کیا کرنا تو وہی چولہا چوکی۔ دادی بھی پڑھائی کی اس گردان میں اپنا حصہ ضرور ڈالتی، اور زیبا کی ماں جو ایک شفقتانہ نظر اس پر ضرور ڈالتی، وہ ان کی سگی بھتیجی تھی۔ آج ان کی شادی کے 19 برس بعد بھی ان کے خیالات وہی تھے۔ انہیں کتنا شوق تھا کہ وہ پڑھتیں۔ ان کے ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کے ہاں شادیاں بچپن میں ہی طے کرنے کا رواج تھا۔ اس کی بات بھی اپنی پھپھو کی بیٹی سے طے تھی۔ پھپھی کو اس کی پڑھائی پر شدید اعتراض تھا۔ انہیں لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا سخت ناپسند تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ تعلیم لڑکیوں کو بڑوں کے سامنے بولنا سکھا دیتی ہے، بے حیا بنا دیتی ہے۔ انہوں نے سختی سے اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا، اگر اسے پڑھایا تو پھر بات ختم ہی سمجھنا۔ منگنی کا ٹوٹنا ان کے ہاں گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا تھا۔ ابا اپنی نرمی کے باوجود ہار گئے، اور انہیں محض 7ویں کے بعد ہی اسکول سے ہٹا لیا گیا۔ یوں ان کے دل میں تقسیم کی جائز چاہ بھی ایک حیرت بن گئی، جس کا انہیں شدید افسوس تھا۔ ان کا یہ افسوس ان کے شوہر یعنی زیبا کے والد اچھی طرح جانتے تھے۔ زیبا کی ماں نے شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی اولاد چاہے بیٹا ہوگا یا بیٹی تعلیم ضرور دلوائیں گی، اور پہلی رات کے خمار میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر بھی لیا تھا۔ لیکن زیبا تھی تو اسی خاندان کا حصہ، اسے پڑھائی سے قطعی شغف نہیں تھا۔ وہ محض افسوس کر سکتی تھی، سر جھٹک دیتی، لیکن دل میں کئی ملال تھے۔ زیبا ہر چیز سے بے نیاز پھر سے طارق بھائی کے پیچھے ہوئی۔ یادوں کی پٹاری کھلی تو کتنے ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ میرون سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس وہ کافی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں کتابیں اٹھائے ہوئے وہ دادی کے تخت کے پاس رکی۔ کہاں چلیں؟ دادی اسے تیار ہاتھ میں کتابیں تھامے دیکھ کر سمجھ تو گئی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، پھر بھی چہرے پر 1000 شکنے سجائے ناگواری سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ دادی پڑھنے جا رہی ہوں، شازیہ آئے گی، ابھی اسی کا انتظار ہے، زیبا نے رکتے ہوئے کہا۔ اسے دادی کا اپنی پڑھائی پر اعتراض سے زیادہ شازیہ کے گھر جانے کی روک ٹوک پر اعتراض تھا۔ تبھی دروازہ بجا۔ ابو آج جلدی آ گئے تھے۔ وہ مؤدب ہو کر بیٹھی اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں کی تیاری ہے بیٹا؟ بابا نے نرمی سے اس کی تیاری اور اجلت بھرے انداز کو نوٹ کرتے پوچھا۔ شازیہ کے گھر، اس کی بہن ہم سے سینئر ہے تو پڑھائی میں مدد مل جاتی ہے، اس نے رسان سے بتایا۔
ये और बात वो छुपा गई कि पढ़ाई में मदद करने वाली शाजिया की बहन नहीं, भाई था। ठीक है बेटा, लेकिन क्या जरूरी है कि यूं यहां वहां जाकर पढ़ा जाए? बाबा को वैसे ही लड़कियों का घर से बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं था कि यूं पढ़ाई के बहाने दोस्तों के घर आना जाना। बस बाबा, इम्तिहान करीब हैं इसीलिए जाती हूं, वरना कहाँ जाती हूं। ज़ेबा सही कह रही थी। बाबा ने सर हिलाया। जाओ और जल्दी आना। उन्होंने अंदर जाते हुए कहा, जी बाबा। लड़कियों को कितनी आज़ादी मिली है पढ़ाई के बहाने। दादी मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। ज़ेबा ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटा, दिल लगाकर पढ़ना, यही दिन है मुश्किल के। अगर दिल लगाकर पढ़ोगी तो बहुत अच्छे ना भी सही, फिर भी नंबर आ जाएंगे। कम से कम ग्रेजुएशन कर सकोगी। माँ ने उसे प्यार से समझाया था। हाय, क्या आगे भी पढ़ेगी? दादी को एक नई तशवीश ने आन घेरा। इससे पहले कि वो माँ बेटी जवाब देती, तारिक भाई अंदर से नमोदार हुए। चलो ज़ेबा। उन्होंने बाइक बाहर निकाली थी। अच्छा अम्मी, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ हाँ, खैर से जाओ। वो जल्दी से तारिक भाई के पीछे हुई। तारिक भाई ज़ेबा को शाजिया के घर के बाहर छोड़कर चले गए थे। बोगनवेलिया की घनी घनी गुलाबी बेलों से ढका शाजिया का दरवाज़ा शाजिया ने ही खोला था। वो थोड़ा झुकते हुए अंदर दाखिल हुई। सहन में ही शाजिया की वालदा और बड़ी बहन अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। वो उन्हें सलाम करते हुए शाजिया के पीछे हुई। शाजिया का रुख अपने बने गोल बरामदे की तरफ था, जहां बैठकर वो दोनों पढ़ाई किया करती। ज़ेबा चल तो शाजिया के साथ रही थी, लेकिन उसकी नजरें यहां वहां किसी को खोज रही थी, और वो भी शायद ज़ेबा के ही इंतजार में था। फौरन ही सामने आ गया। ज़ेबा के चेहरे पर कई दिलकश रंग लहरा गए। वो भी ज़ेबा को देखकर एक तरंग में नजर आता था। ज़ेबा को अच्छी तरह मालूम था कि ये सब वक्ती है और उसका रिश्ता अपने ताया ज़ात से तय है, लेकिन उसे ये अजनबी रास्ते जो थोड़ी देर को ही सही अपने घर के घुटन ज़दा माहौल से बाहर ले जाते बहुत पसंद थे। वो बगैर सोचे समझे उस राह पर गामजन थी जिस पर उसके लिए कांटे ही कांटे हो सकते थे। वो तो महज कुछ वक्त अच्छा गुजारना चाहती थी। सुहेल से यूं होने वाली मुलाकातें महज पानी के बुलबुले की मानंद थी। ना वो रास्ता थी, ना ही मंजिलें। एक ला हासिल सी लज्जत थी जिसमें वो दोनों ही सरपट दौड़ रहे थे। ज़ेबा के वो दिन, जिन दिनों वो इम्तिहान की तैयारी के लिए रोज अपनी सहेली के घर जाया करती थी, मसरूर से गुजर रहे थे। लेकिन हर बात का इंतकाम हुआ करता है। दिन पर लगा कर उड़े और ज़ेबा की पढ़ाई और इम्तिहानों की मसरूफियत एक बहुत ही बुरे, नाकाबिले कबूल नतीजे को लेकर सामने आई। ज़ेबा ने दिल से पढ़ना तो दूर, सिरे से पढ़ा ही नहीं था। नंबर कैसे अच्छे आते? रिजल्ट आया तो उसे ज्यादा परवाह भी नहीं थी, लेकिन उसकी मां, उन्हें शदीद रंज पहुंचा था। पासिंग मार्क्स लेकर पास हुई थी। ये लो, क्या फायदा इतना वक्त बर्बाद करने का? इससे अच्छा था तुम कोई और काम कर लेती। दादी को नंबरों की तो कुछ सूझबूझ नहीं थी, लेकिन अपनी बहू का लटका मुंह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। दादी, पास तो हो गई हूं ना? ज़ेबा बेफिक्र मगर जारहाना लहजे में बोली। कौन सी कलेक्टर लग जाती तो? दादी ने मुंह बनाकर कहा। ज़ेबा, रोटी बना दो बेटा। अम्मी थकी हारी बरामदे में बने तख्त पर आकर बैठी थी। दादी के बरक्स उन्होंने ज़ेबा से कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि वो मजीद खामोश हो गई थी। इतनी गर्मी है अम्मी, आज बाजार से रोटी मंगवा लें। ज़ेबा के लहजे में शदीद बेजारी थी। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू कहाँ खाते हैं बाजार की रोटी? अम्मी ने कहा। अब्बा कौन सा आपका एहसास करते हैं? अभी आकर आपको बताएंगे कि आज आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की। ज़ेबा ने आंखें सुकेड़ कर कहा। वो अपने बाप की नुक्ता चीनी आदत से सख्त बेजार थी।
अम्मी खामोश रहें, आप इन्हीं की फिक्र में घुली जाती हैं। ज़ेबा ने फिर नागवारी से कहा, बेटा अगर तुम्हारे अब्बू कभी किसी बात पर कुछ कह भी देते हैं तो क्या हुआ, हमारा कितना ख्याल भी तो करते हैं, और कौन रख सकता है भला इतना ख्याल। अम्मी के लहजे में अपने शौहर के लिए मोहब्बत और आजिज़ी थी। हाय, इसकी ज़बान देखो, दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। ये कॉलेज जाने का नतीजा है सारा। दादी ने बहू की बात को यकसर नज़रअंदाज करते पोती को सरजनिश किया। अम्मी ने कोफ से दोनों दादी पोती को देखा। ज़ेबा रोटी बनाने किचन में चल दी थी। सुबह से ही बादलों ने पूरे आसमान को घेरा हुआ था। अम्मी, मुझे शाजिया के घर जाना है। इतने सुहाने मौसम में ज़ेबा तो अपने घर में, जहां बूढ़ी दादी और मां के अलावा एक भाई और बाप था, बहुत बोरियत हो रही थी। बेटा मौसम बहुत खराब है, ये कोई वक्त है कहीं जाने का? अम्मी, यही तो वक्त होता है दोस्तों में जाने का। ज़ेबा के जहन के पर्दे पर वो दिलनशीं चेहरा था। कितने दिन हो गए थे उसकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। इतने में दरवाज़ा बजा। दरवाजे पर ताई अम्मी और उनका फैज़ था। अजरा फौरन अलर्ट हुई। दादी बड़ी बहू और पोते को देखकर खुशी से निहाल थी। वो बहुत कम कहीं आती जाती थी। वो बारिश की मुनासबत से पकोड़े और समोसे वगैरह लाई थी। उन्होंने खाकी लिफाफे अपनी देवरानी के हाथ में पकड़ाए। ज़ेबा ने अपनी तासुब की पट्टी खोलकर कभी गौर नहीं किया था कि फैज़ और ताई जान बाकी खानदान की निस्बत कुछ मुख्तलिफ थे। शायद अम्मी की तरह ताई अम्मी के दिल में भी बहुत सी ख्वाहिशात नाआसूदा थीं, जिनसे आंखें चुराकर उन्होंने मनफी रुख इख्तियार करने के बजाय खुद को मस्बत रास्ते पर गामजन किया था। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अजरा ने कहा। क्यों नहीं थी? इतना प्यारा मौसम है, मैंने सोचा सब मिलकर लुत्फ लेंगे। वो खुश अखलाकी से गोया हुई। ज़ेबा ने मुंह बनाया। अब वो कहाँ कहीं जा सकती थी। फैज़ हस्बे मामूल सर झुकाकर बैठा था। वो बहुत मेहनती था। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो पार्ट टाइम मैकेनिक भी था और अच्छा खासा कमा लेता था। उसने कभी ज़ेबा को आंख उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो आज नहीं तो कल उसी की तो होनी थी। पता नहीं ज़माने की हवा थी या जब से सुहेल की रंगीन मिजाजी देखी थी, उसे फैज़ एक आंख ना भाता और ज़ेबा को उसकी ये शराफत बहुत बुरी लगती। कुछ भी था अपनी उम्र के कच्चे घरौंदे से ख्वाब जो सिर्फ खुद नहीं टूटते, जब टूटते हैं तो आपके वजूद को भी तोड़ देते हैं। ज़ेबा बहुत खुश थी। आज उसने सुबह से ही इरादा बना रखा था कि वो हर हाल में शाजिया के घर जाएगी। वो कॉलेज से वापस आई तो बड़ी दिलजमी से घर के हर काम में हिस्सा लिया। कुछ देर आराम किया, फिर दोपहर तक उसकी बेकरारी उरूज पर पहुंच चुकी थी। अम्मी, आज शाजिया के घर जाऊं? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आज ज़ेबा के अब्बू किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए थे। रात देर तक उनकी आमद मुतवक्के थी। हाँ चली जाओ, लेकिन जल्दी आना। अजरा ने अपनी सादगी में बगैर किसी हीलो हुज्जत के उसे इजाज़त दी तो वो खुशी से उनसे लिपट गई। अगर उनकी जगह कोई और माँ होती तो वो ज़रूर उसकी खुशी खिलाफे मामूल चुस्ती और तैयारी देखकर ठुठक जाती। माँ को इतना सादा नहीं होना चाहिए। अगरचे बाद में कई बार ज़ेबा को रह रहकर उस ख्याल ने सताया कि काश उस दिन उसकी माँ ने इसे इजाज़त ना दी होती। तारिक ने ज़ेबा को शाजिया के दरवाजे पर छोड़ा। वो हस्बे मामूल शाजिया और उसकी बहन से मिली। फिर वो शाजिया के साथ अंदर चली गई। तुम बैठो, मैं चाय चूल्हे पर रख कर आई। शाजिया कहकर बाहर निकल गई। ज़ेबा अभी उसी को ढूंढ रही थी कि वो सामने से आ गया। ज़ेबा ने बेख्तियार सलाम किया। वो सलाम का जवाब देकर बैठ गया। कैसी हो? आज बड़े दिन बाद आई। निकल नहीं सकी थी। सुहेल ने नजरों ही नजरों में ज़ेबा से कुछ कहा। वो बुरी तरह छेम गई। आज सुहेल के अंदाज ज़ेबा को यकसर बदले हुए दिखाई दे रहे थे।
पता नहीं इतने दिन की दूरी थी या अब वो कोई मौका जाया नहीं करना चाहता था। वो बुरी तरह फरेफ्ता हो रहा था। ज़ेबा सुहेल की ये बेबाकी और वालेहानापन देखकर अब कंफ्यूज हो रही थी। ये कहाँ सोचा था उसने कि अगर सुहेल ने पेशरफ्त की तो उसके बाद क्या करेगी? क्या वो सुहेल से कोई और ताल्लुक रख पाएगी? उसका दिल धड़क गया। मैं अभी आई, वो ये कहकर शाजिया के पास चली गई। सुहेल ने काफी देर इंतजार किया। वो नहीं आई तो कुछ सोचकर उसने एक सफ़ा कॉपी से अलहदा किया और बहुत तफसील से खत लिखा, जिसमें उसने अपनी तमाम तर बेचैनियों से इसे आगाह किया। खत को उसने वहीं ज़ेबा की किताब में रख दिया। ज़ेबा दोबारा आई तो सुहेल वहां मौजूद नहीं था। ज़ेबा अभी देख ही रही थी कि शाजिया आ गई। उसके हाथ में शाम की चाय के लवाजमात थे। यार ये क्या इतना तकल्लुफ? ज़ेबा ने इश्तहा अंगेज खुशबू अपने अंदर उतारते हुए कहा। यार आज बाजी ने पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बना है। आओ जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। शाजिया ने कहा तो ज़ेबा बाहर सहन में लगे वॉश बेसन की तरफ मुड़ गई ताकि हाथ धो सके। वो दोनों अब सब कुछ भुलाए दुनिया जहान की बातों में मगन थी। चाय का आखिरी घूंट भरा ही था कि ज़ेबा का मोबाइल बजा। तारिक भाई की कॉल थी। वो शायद उसे लेने आन पहुंचे थे। ज़ेबा ने जल्दी से चाय का कप रखा, किताबें उठाई और खड़ी हो गई। आज तो वक्त का पता ही नहीं लगा। ज़ेबा कहते हुए शाजिया से अलविदाई कलमात अदा कर रही थी। दोनों ने आज खूब एंजॉय किया था और ज़ेबा की किताबें जैसे गई थी वैसे ही वापस आ रही थी। उन्होंने आज किताब खोली तक नहीं थी। ज़ेबा घर पहुंची तो घर में खिलाफ तवक्को गहमा गहमी थी। अबू हैदराबाद से आ चुके थे। दादी और अबू तख्त पर बराजमान राजो नियाज में मसरूफ थे। ज़ेबा इस बात से अनजान थी कि उसकी किताबों में कागज़ का एक ऐसा कागज़ मौजूद है जो उसके परखच्चे उड़ाने की अहलियत रखता है। ज़ेबा भी वहीं बैठ गई। ज़ेबा जाकर कपड़े वगैरह तब्दील कर लो, फिर खाना लगाते हैं। अम्मी ने चाय के कप सफ़ेद फूलदार मेज़ पोश से ढकी मेज़ पर से उठाए और ट्रे में रखते हुए कहा, जी अम्मी, आज तो शाजिया ने इतना कुछ खिला दिया कि कुछ खाने की हिम्मत नहीं। ज़ेबा ने कहा और उनके हाथ से ट्रे लेकर खुद किचन की जानिब चल दी। अब वो किचन में मौजूद पतीली का ढक्कन उतारते हुए मेन्यू चेक कर रही थी। दाल चावल देखकर वैसे ही उसकी भूख उड़ गई थी। रज़िया कह रही थी इस महीने तारीख रख लेगी। दादी ने पास बैठे बहू और बेटे को मुखातिब करते हुए बड़ी बहू की बात बताई। अच्छा अम्मा, इंटर तो कर ले ज़ेबा, क्या जल्दी है? पता नहीं अब्बा ने कैसे बोला था। दादी हैरान रह गई। तू कब से इन माँ बेटियों के रंग में रंग गया? क्या कर लेगी पढ़कर? शुक्र कर घर बैठे इतना नेक शरीफ लायक सा लड़का मिल रहा है, जबकि लड़की भी कबूल सूरत है। कोई ऐसे काबिले जिक्र गुण भी नहीं। ना शुक्री ना कर। दादी ने साफ गोई की इंतहा ही कर दी थी। ज़ेबा जुजुब होकर रह गई। पढ़ाई पर तो मोए कितने साल बर्बाद हो जाएंगे, क्या खबर। लड़कियों की उम्र निकलते क्या देर लगती है। बेसी और घिसी, यानी 20 की हुई और बस पलक झपकते उम्र निकली। अम्मा को तो पढ़ाई के नाम से ही उलझन होती थी, जैसे तालीम हासिल करना बहुत बुरी या काबिले गिरफ्त बात हो। अम्मा एक ही तो चीज मांगी है तुम्हारी बहू ने सारी जिंदगी में कि बेटी को कम से कम इंटर करने दो। मैं उसकी ये बात जरूर पूरी करूंगा। आप बता दीजिएगा भाभी को, इंटर के इम्तहानात होने ही वाले हैं, फिर जब चाहे ले जाएं भाभी ज़ेबा को। कहाँ मना किया है, उन्हीं की तो अमानत है, बस इम्तहान भी सर पर है। उन्होंने बेलचक दो टोक लहजे में कहा था। दादी कुछ भी बोल ना सकी। ज़ेबा उनके ख्यालात सुनकर आगे बढ़ी। उसे अपने अब्बा के मुतालिक अपने ख्यालात पर कुछ कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। आओ ज़ेबा, बताओ इम्तहान कब है? उन्होंने ज़ेबा को देखा तो पुकार लिया। ज़ेबा भी आकर उनके पास बैठ गई और बताने लगी कि कब से पेपर शुरू होने वाले थे।
وہ بتا رہی تھی کہ عذرا بھی وہیں آ گئی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میز پر دھری چند کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی۔ جیسے حوصلہ افزائی وہ آج کر رہے تھے، کاش پہلے کبھی کر دیتے تو زیبا زیادہ نہیں تو تھوڑی سنجیدہ ہو ہی جاتی پڑھائی میں۔ زیبا مسکرائی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کتاب کھولی، صفحے الٹ پلٹ کیے کہ ایک صفحہ نیچے گر گیا۔ انہوں نے وہیں جھک کر وہ صفحہ اٹھا لیا۔ زیبا کو ہلکا سا شائبہ تک نہیں تھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہ صفحہ واپس رکھتے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور یکدم جیسے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ کیا بکواس ہے زیبا؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے دھاڑے۔ ان کی آواز غصے سے پھٹی جا رہی تھی۔ زیبا اور عذرا دونوں سہم سی گئی تھی۔ دادی بھی بڑے غور سے اس صفحے کو دیکھنے لگی۔ تو یہ ہوتی ہے وہاں پڑھائی؟ کون ہے یہ بے غیرت؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والے ابو سے یکسر مختلف نظر آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر زیبا پہ ہاتھ اٹھانے والے ہی تھے کہ دروازے سے تائی امی اور طارق بھائی اندر داخل ہوئے۔ ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ وہ دونوں بھی حیرانی سے سب دیکھنے لگے۔ ابو مجھے علم نہیں، اس کی آواز جیسے کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے، بے غیرت کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ خبردار جو آئندہ پڑھائی کا نام لیا ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑے۔ بھائی جان، تائی امی آگے بڑھی۔ دیکھ لیا نتیجہ تم دونوں کی ضد تھی کہ یہ پڑھے گی، دیکھ لیے کرتوت اس کے، یہ پڑھائی کی ہے اس نے۔ وہ اب زیبا کو چھوڑ کر بھاوج اور بیوی سے مخاطب تھے۔ اور تم یوں بے خبر رہیں جوان بیٹی کی حرکتوں سے کہ یہ کیا گل کھلا رہی ہے پڑھائی کے بہانے؟ رضیہ بھابی، چاہو تو ابھی تاریخ لے لو اور رخصت کرو اسے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ پھر دھاڑے۔ اس کی کتابیں لے کر انہوں نے وہیں رکھی ماچس سے جلا ڈالی تھی۔ زیبا کی نگاہوں میں اس اچانک افتاد سے سراسیمگی پھیل گئی۔ وہ خوف اور احساس ذلت سے سفید ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کی نگاہوں میں شکایت تھی، اذیت تھی۔ دادی کی آنکھوں میں غرور تھا، جیسے انہیں تو پہلے ہی یہ سب کچھ پتا تھا۔ تائی امی بے چارگی سے بیٹھی تھی اور امی کی طرف ہمدردی سے دیکھتی تھی۔ ابو نے جلتی ہوئی کتابوں پر ٹھوکر ماری اور وہاں سے جھکتے جھکتے چل دیے۔ امی نے زیبا سے کچھ نہیں کہا۔ کاش وہ کچھ کہتی۔ وہ چپ رہیں۔ زیبا، میرے بچے، یہ کیا کیا تو نے؟ تائی امی بہت آہستہ آواز میں افسوس سے بول رہی تھی۔ تجھے پتا ہے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہم کتنا ترستے تھے؟ یہ کتابیں تمہیں ملیں اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے لیے آواز نہیں نکالی، لیکن ہم نے اپنے حصے کی لڑائی لڑی تمہارے لیے، تاکہ تم ہماری طرح ان پڑھ نہ رہ سکو۔ زیبا، تعلیم ہمارے لیے عیاشی نہیں، سہولت تھی، ضرورت تھی۔ تمہیں پڑھنے کا موقع ملا تھا، سب کو نہیں ملتا میرے بچے، تجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ تعلیم کی سہولت سب کو نہیں ملتی۔ ہم نے کتنا نقصان کیا تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں علم۔ ان کے پست لہجے میں صدیوں کا ملال تھا۔ وہ ایسے ہاتھ افسوس سے ملتی تھی جیسے یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تائی امی، زیبا نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا تو جیسے زبان گنگ تھی۔ تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ ہاں، یہ سچ ہی تو تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ذرا سی لغزش ضرور ہوئی تھی۔ زیبا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سہیل اس کو یوں خط لکھے گا اور بغیر بتائے۔ وہ تو سوچتی تھی کہ تھوڑا سا وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے نالاں تھی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس گھٹن زدہ ماحول کے باوجود اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ ایک روزن تو اس کے لیے کھلا تھا، اور اگر وہ سمجھدار ہوتی تو اس کھلے روزن سے خوب فائدہ اٹھاتی۔ اس ذرا سے روزن سے نظر آتا آسمان بے کراں اور وسیع تھا۔ وہ چاہتی تو اس آسمان سے اتنی روشنی اندر اتار لیتی کہ اس کی اگلی نسلیں تعلیم کی اس روشنی میں نہال ہو جاتی۔
लेकिन उसे पढ़ना मुश्किल लगा। हर अच्छा और सच्चा रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन जहां वो रास्ता खत्म होता है वहां से ही सहल रास्ता शुरू होता है, निस्बतन आसान और पुरसकून। लेकिन हर चीज का वक्त होता है, और अब वक्त गुजर गया था। अब कुछ भी कहना सुनना बेकार था। वो कहते कहते चुप हुई, क्योंकि कुछ भी था, उसे पढ़ना पसंद नहीं था। उसे आसान चीजें पसंद थी, जो चीजें वक्ती होती हैं, लेकिन जिनके नताइज कठिन होते हैं और जिंदगी भर भुगतने पड़ते हैं। ताई अम्मी तो अब्बू को यकीन दिलाकर कुछ नहीं बिगड़ा। वो मुनासिब वक्त देखकर और घर वालों से मशवरा करके तारीख तय करने जल्द आएंगी चली गई थी। लेकिन वो तो जमीन में गड़ गई थी। कुछ कहे बगैर गलती जरूर हुई थी, लेकिन सजा बहुत कठिन मिली थी, और सजा की मुद्दत भी उसे मालूम नहीं थी। तकदीर जब सजा देती है तो वो जुर्म नहीं देखती कि छोटा है या बड़ा। तकदीर के यहाँ ये पैमाना ही नहीं। बाज दफा छोटे से जुर्म की संगीन सजा इसलिए भी मिलती है कि मुजरिम को जिंदगी भर मिलने वाला सबक याद रहे। वो घर में सबसे कट गई थी, किसी के सामने नहीं आती थी, ना ही कोई उसके बारे में पूछता। उसका बस नहीं चलता था कि वो खुद को कहीं गायब कर ले। उसकी मां ने उससे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने तो इससे बात ही नहीं की। वो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन क्या कहती? वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। वहीं कुछ बेहतर दिनों के इंतजार में एक और बुरा दिन तुलू हुआ, जब ताई अम्मी ने शर्मिंदगी से बताया कि फैज ने शादी से इनकार कर दिया है। उसकी स्याह बख्ती की बात तो सिर्फ उन लोगों को मालूम थी। उस मनहूस दिन ताई अम्मी का छोटा बेटा अजीज भी साथ ही था। उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था। फैज को एक अनपढ़ बीवी तो गवारा थी, लेकिन एक बदकिरदार नहीं। ज़ेबा का बस नहीं चलता था कि ज़मीन फटती और वो उसमें समा जाती। खानदान भर को इल्म था कि ताई अम्मी और उसकी माँ के माबैन मिसाली दोस्ती थी। फिर क्या हुआ जो यूं सब अचानक खत्म हो गया? सब हैरान थे, जरूर कोई बात बड़ी होगी। सब कयास आराइयां करते। इसी असना में दूर परे की अब्बू की कज़न, जो पहले भी चाहती थी, ज़ेबा के लिए झोली फैलाए आन पहुंची। मुराद पढ़ा लिखा नहीं था, वाजबी सी शक्ल थी बस। बाप के मारे बांधे झोटे से कारोबार में लगा हुआ था। रिश्ते को गनीमत समझा गया। ज़ेबा शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो कुछ बोलने के काबिल कहाँ थी। वो सोचती, क्या सब गलतियां करने वालों को ऐसे ही सजा मिलती है? शायद सबको नहीं, लेकिन कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं कि उनकी जरा सी गलती भी लोगों की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म बन जाती है, नाकाबिले तलाफी बनकर, जिसकी सजा उन्हें पल पल भुगतनी पड़ती है, जिंदगी भर। ज़ेबा को इस सारे मामले में सरासर अपना कसूरवार लगा। उसकी माँ, उसकी भोली माँ, जिससे वो हमेशा शिकायत करती, आज वो इस काबिल भी नहीं रही थी कि सर उठाकर माँ से कोई बात कर पाती। वो तो पहले ही बहुत खामोश, अपने ही खौल में बंद रहने वाली थी। अब तो जैसे वो एक पत्थर की सिल बन चुकी थी। दिन रात मौका बेमौका दादी और अब्बू से उन्हें ताने सुनने को मिल रहे थे। ये थी तालीम की अहमियत, ये थी तुम्हारी तरबियत। उसका दिल चाहता वो कहे, मेरी माँ को कुछ ना कहो, ये उसकी तरबियत नहीं, ये तो मेरी अपनी गलती है, मेरा अपना करम था। ज़ेबा की बात तय हो गई थी, रुखसती करीब थी। माइयों का दिन था, सपहर लगती थी कोई खून आशाम शहर आलूद बदरूह जैसी। उसे उपटन लगाया जा रहा था। उसकी माँ ने भी आगे बढ़कर रस्म की थी। इसका दिल चाहा उन्हें थाम ले, बताए, उनसे बात करे, लेकिन वो ज़ेबा को देख रही थी। उन्होंने इसे गले लगाया। ससुराल जा रही हो, ख्याल रखना कोई गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं देती ये दुनिया। उन्होंने निहायत आज़ुर्दगी से कहा और जैसे जब्त टूट गया। दोनों माँ बेटी ज़ारो कतार रोईं, दरो दीवार हिल गए। सब दुख से देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये रोना सिर्फ जुदाई का नहीं, सदा की बेहिस दादी की भी आंखें अश्क बार थीं। वो ब्याह कर जिस आंगन में आई, उसमें और उसके घर के आंगन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे।
नई नई ब्याहता के चाऊ चोंचले सिर्फ एक दिन ही मुश्किल से उठाए गए। दूसरी शाम ही उसकी सख्त गीर सास ने शादी को रूटीन का एक हिस्सा बनाते हुए उसे आलू कीमा बनाने का हुक्म दिया और 7 रोटियां। मुराद बेनियाज बना टीवी देख रहा था। ज़ेबा किचन में आई और लगन से प्याज काटने लगी। वो इस घर में पूरी दिलजमी और अच्छी नीयत से बसना चाहती थी। वो ज़रा से भी गलती नहीं करेगी, हत्ता के नियतों के हेर फेर की भी नहीं। वो समझ गई थी, हमें लगता है हम मुस्तहिक नहीं थे किसी नारवा सलूक के, किसी नाकामी के, जबकि हमारी नीयत के हेर फेर को तो तोला तोला माशा माशा जानता है। कीमा तो उसने बना लिया था, लेकिन रोटी, ऐसा नहीं था कि उसे रोटी बनानी नहीं आती थी। आती थी, लेकिन वो मशाक नहीं थी। फिर भी उसने बिस्मिल्लाह करके रोटी पकानी शुरू की। नतीजा वही था, वो अच्छे नक्शे बना रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कोशिश करती रही। बड़े से दस्तरख्वान पर 2 नंदें, एक जेठ जेठानी, उनके 5 बच्चे और छोटे देवर, सास ससुर समेत पूरा ससुराल मौजूद था। उसने डरते डरते खाना दस्तरख्वान पर चुना। पहली रोटी सास अम्मी ने निकालकर ससुर को दी तो उन्होंने रोटी को कई जावियों से घोरा। गनीमत थी कि खामोश रहे, लेकिन सास, नंदे, जेठानी अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सकी। वो हंसी जाती थी। ज़ेबा मुंह में सर दिए हमन्नक बनी उनके रवैयों को समझने की कोशिश में हलकान थी। फिर रोटियों की उन पुरस्रारियत को मुराद ने तोड़ा। रोटी बनानी नहीं आती, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, क्या किया इतनी उम्र में। अपने तय मामूल की बात कहते मुराद जैसे अपना फर्ज पूरा कर चुका था। ज़ेबा को लगा उसको पहले सिखाया जा चुका था कि तनकीद करना उसकी जिम्मेदारी थी। अब वो अपना फर्ज पूरा कर चुका था और आराम से खाना खा रहा था। सबने रोटी का बताया क्योंकि परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इश्तहा अंगेज खुशबूदार भुना हुआ मसाले वाला हरी मिर्च और हरे धनिये से सजा कीमा किसी की नज़र में नहीं आया। अब रोटी की गोलाई में ऐसा भी क्या रखा है? ज़ेबा ने गर्दन उठाकर देखा। मोटा सा चश्मा पहने, सीख सिलाई जैसी उसकी बड़ी नन ने कहा। यूं तो ज़ेबा को वो भी हंसते हुए उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं लगी थी, लेकिन इस वक्त वो ज़ेबा को बहुत भली लगी। खानी तो है, क्यों अब्बू? सीमा ने अपने अब्बू ज़ेबा के ससुर को पुकारा। हाँ, उन्होंने मारे बांधे कहा, जैसे रोटी की गोलाई जिंदगी और मौत का मसला था। सीमा की दिल जोई के बावजूद ज़ेबा की भूख उड़ चुकी थी, लेकिन खाना तो उसे खाना ही था। बाबुल के आंगन में उसकी टेढ़ी मेढ़ी रोटी को भी सनद हासिल थी। मैके का ख्याल आते ही बेख्तियार आंखें भीग गईं। उसने जल्दी से आंखों के कोने साफ किए। गुजरते शबो रोज में उसने देखा मुराद आलम शौहरों जैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही जैसे शौहर होते हैं। थोड़ा सीधा, ज्यादा टेढ़ा, थोड़ा खुश मिजाज और ज्यादा नक चढ़ा, थोड़ा मतलबी, थोड़ा दिलजोई करने वाला, बस ठीक ही था। उसने कभी कहाँ जिंदगी से कुछ ज्यादा मांगा था, और अब तो इसे बिल्कुल ही कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। ससुराल भी वैसा ही था जैसे ससुराल हुआ करते हैं, लेकिन अब वो किसी को भी खुद से शिकायत का मौका नहीं देगी, किसी भी सूरत। ससुराल आए उसे 2 बरस होने को आए। जाड़े से बहार, बहार से गर्मी, गर्मी से बहार, खिज़ां, कितने ही मौसम बदले। उसके मैके में सब खैरियत थी। माँ उसे बुलाती, दादी दुहाइयाँ देती, लेकिन उसने कसम खाई थी अब वहाँ का रुख नहीं करेगी। दिल में खलिश थी, फांस सी गड़ी थी। माना गलती हुई, लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि यूं देश निकाला ही कर दिया जाए? आनन फानन वो दूसरे शहर में थी। जेठानी पूछती, नंदे सास कहती घर हो आओ, 2 साल से नहीं गई। वो मुराद पर डाल देती। मुराद जाने नहीं देते, और वाकई मुराद उसे जाने नहीं देता था, और वो इस बात पर 1000 बार शुक्र अदा करती। वो जैसा भी था इससे प्यार करता था, परवाह करता था, इसके लिए यही बहुत था। निस्बतन पुरसकून रवान नदी की मानिंद गुजरती जिंदगी ने फिर करवट बदली।
जब मुराद का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट ने एक बार फिर ज़ेबा की ज़िंदगी तहहो बाला कर दी। हादसे में मुराद की एक टांग इतनी बुरी तरह चली गई कि काटना पड़ी और जिस्म का एक हिस्सा मफलूज हो गया। वो काम काज तो कुजा मिलने जुलने के भी काबिल ना रहा। ज़ेबा पर जैसे कयामत टूटी थी। वो अब अपने आप में मुनासिब से लाताल्लुक एक खौल में बंद जिंदगी काट रही थी, लेकिन जिंदगी को उसकी ये बेअनियाज़ी पसंद नहीं आई थी। सो उसे बुरी तरह से झंझोड़ डाला। वो अब अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 जानें और थीं। उसे हिम्मत करनी ही थी। इस नागहानी उफ्ताद पर उनका सारा मैका इससे मिलने आया। वो वक्त आया था कि किसी को कोई गिला शिकवा याद नहीं रहा। तारिक भाई और अब्बू ने उससे कहा कि वो उनके घर चले, वो इसकी और इसके बच्चों की देखभाल करेंगे, मुराद का इलाज भी बेहतर हो सकेगा। नहीं तारिक भाई, अब तो मर कर ही इस घर से निकलूंगी। गालों पर लुढ़कते आंसू साफ करते हुए वो बोली थी। तारिक भाई ने भी आंसू जब्त करते उसके सर पर हाथ रखा था। ज़ेबा के शबो रोज के अलावा सब कुछ मामूल पर था। मुराद पहले भी अपनी फैमिली के छोटे मोटे फलों की आड़त के काम में हाथ बटाता था। मेन कारोबार बाप और भाई के हाथ में था। वो कनात पसंद था या कामचोर, फिर भी एक मखसूस तनख्वाह हर माह घर आती थी। अब वो भी नहीं रही थी। ज़ेबा तो उसकी खिदमत में जुटी थी। होश तब आया जब हाशिर और मुस्तफ़ा के स्कूल की फीस 4 माह ऊपर चढ़ी। यकदम वो परेशान हो गई कि क्या करे। अब्बू से बात करती हूँ, उसने सुसर से बात करने की ठानी। अब्बू, वो काम से आकर टीवी के आगे बैठे थे जब ज़ेबा आई। हाँ कहो बेटा। उन्होंने टीवी की आवाज़ कम की। अब्बू, वो बच्चों की 4 माह की फीस जमा हो गई है। अच्छा। उन्होंने फिक्रमंदी से भवें सुकेड़ी। मुराद के इलाज में पानी की तरह पैसा बहा था। वो तो भूल ही गए थे कि मुराद के 2 स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं। 2 महीने की अभी ले लो, फिर अगले महीने ले लेना। जी अब्बू, उसने सर झुकाकर कहा। ज़ेबा ने आज निहायत मजबूरी में हाथ फैलाया था और फिर तो जैसे घर भर को अदराक हो गया कि वो उनकी मोहताज है। खड़ी खड़ी उनके नाम की पुकार घर में गूंजने लगी, जैसे उसके बगैर घर के तमाम काम अधूरे रहेंगे। वो घन चक्कर बनी रहती। मुराद मुसलसल देख रेख, मालिश, फिजियोथेरेपी वगैरह की और ज़ेबा की तवज्जो से कुछ बेहतर हुआ था। सहारे से चलने लगा था, लेकिन कामकाज के काबिल नहीं था। वो बेहद चिड़चिड़ा भी हो गया था। कब तक ऐसे रहोगी सबकी गुलाम बनकर? कुछ करती क्यों नहीं हो? सीमा ने रात के 11 बजे उसे अपने बड़े भाई के लिए खाना गर्म करते देखा तो रह न सकी। अब घर के हर फर्द का काम ज़ेबा के जिम्मे था, क्योंकि वो सब उसे जिंदगी गुजारने का ईंधन जो फराम कर रहे थे। मैं क्या कर सकती हूँ, ना पढ़ी लिखी हूँ, कहते हुए उसके दिल को कुछ हुआ। जिंदगी ने कदम कदम उसकी गलतियों का एहसास दिलाया था। ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। थोड़ा बहुत तो पढ़ी हो, मैट्रिक तो किया है, ट्यूशन्स ही पढ़ा लो। सीमा अपने लिए चाय बना रही थी। कौन पढ़वाएगा मुझसे? क्या हैसियत है मैट्रिक तक तालीम की? ज़ेबा के लहजे में नमी थी। सीमा कुछ सोच रही थी, सो चुप रही। ज़ेबा ने खाना गर्म करके जेठानी के दरवाजे पर दस्तक दी थी। हाशिर और मुस्तफ़ा जेठानी के छोटे मुर्तज़ा के साथ खेल रहे थे कि मुर्तज़ा को गेंद लग गई। वो गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। अनीला, ज़ेबा की जेठानी, बाहर निकली। क्या हुआ? क्यों मारा है इसे? जिंदगी अजाब कर दी है हमारी। पता नहीं क्या गुनाह हुआ है हमसे। वो तंग दिल औरत थी। जो बातें बड़ों को नहीं बोल सकती थी वो बच्चों को सुना रही थी। कल ही उसने अपने शौहर से मेके जाने के लिए कुछ रकम का मुतालबा किया था, जो उसके शौहर ने ये कहकर कि मुराद की बीमारी और उसके घर की देखभाल में इजाफी खर्चा हो रहा है, तो कुछ दिन हाथ रोके रखो। जेठानी को गुस्सा तो इस बात का था, लेकिन निकालने के लिए उसने इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। वो आगे बढ़ी। ताईजान, मारा नहीं, लग गया। मुस्तफ़ा तोतली जबान में बोला। झूठ बोलते हो बेशरम। शर्म मर गई है तुम लोगों की, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर। वो नखूत से बोली थी।
भाभी आप होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं बच्चों के सामने? सीमा उनकी आवाज सुनकर बराबर वाले कमरे से निकली थी। इतनी ही हमदर्दी है तो तू क्यों नहीं खिलाती इन लोगों को? अनीला एक कमजर्फ निचले तबके की अनपढ़ औरत थी। ज़ेबा सब बनकर अनजान बन रही थी। छोड़ें भाभी, सीमा ने ज़ेबा के हाथ से बर्तन लेकर नीचे पटखे। आए मेरे साथ। हाशिर, मुस्तफ़ा, सीमा उन सबको भी लेकर अम्मी के कमरे में चली गई। मैं कल ज़ेबा भाभी को सिलाई सेंटर लेकर जा रही हूँ। वहां से सिलाई सीखेंगी मुकम्मल, फिर खुद सिलाई करेंगी। ज़ेबा हक्का बक्का रह गई। ज़ेबा की सास खामोश थी। वो लाख पक्की वाली सास थी लेकिन जालिम नहीं थी। उन्होंने सीमा को सर हिलाकर इजाजत दी। चलें अपने कमरे में, अब आपको कोई फालतू काम करते ना देखूं। इस महीने की फीस मैं दूंगी, सीमा ने कहा। सीमा बहुत मेहनती थी। वो BS कर रही थी प्राइवेट कॉलेज से। उनके लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल था, लेकिन घर में ज़ेबा के साथ महज चंद रुपयों की इवज होने वाली ज्यादती वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन सीमा, तुम कैसे करोगी? वो आप मुझ पर छोड़ दें, सीमा ने संजीदगी से कहा। हमारी जिंदगी हो या किसी और की, हर बात की एक हद होती है। बाज दफा जिंदगी हमें बार बार आगाह कर रही होती है कि अब बस हम समझने में देर कर देते हैं। सीमा बहुत दिन से ज़ेबा और बच्चों को देख देख कर कुढ़ती थी और वो अपनी माँ से भी कहती, और काम ही क्या है उसका, 2 काम ज्यादा कर लेगी तो क्या घिस जाएगी। उसकी माँ बड़ी बहू की ज़बान से वाकिफ थी, सो किसी फड्डे में नहीं पड़ना चाहती थी। फिर बड़े बेटे के अलग होने का भी खदशा था, जिसका मतलब था कि आधे कारोबार से अलग होना, और अभी वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि घर में मजीद 4 कुंवारे बच्चे थे जिनकी शादियां उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस दिन सीमा की सोच एक अलग नहज पर पहुंची थी कि आखिर ज़ेबा भाभी अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बस सोचने ही की तो देर होती है, रास्ते तो खुद मिल जाया करते हैं। वो अपने खौल से निकली और खुद साख्ता मजलूमियत की चादर जो बरसों पहले उसने ओढ़ी थी, उसमें पहली नकब लगी। वो दिन रात जी जान से सिलाई सीख रही थी। सिलाई सीखना ज़ेबा के लिए बहुत आसान था। काम भी बज़ाहिर मामूली सा था, लेकिन हुनर था, और हुनर मामूली नहीं होता। ये उसे तब पता चला जब उसने बाकायदा सिलाई शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ में सफाई आने लगी। लोग उससे कपड़े सिलवाने लगे। घर वालों ने दिन रात सिलाई मशीन की आवाज़ों पर भी एतराज़ किया, तो उसने एक 2 कमरों का घर जो उसके ससुराल के पास ही था, बड़ों की मशावरत से किराए पर ले लिया। मुराद अब बैसाखी के सहारे चलने लगा था, लेकिन उसने खुद पर माजूर होने का ठप्पा लगा लिया। वो कोई काम करना ही नहीं चाहता था। ज़ेबा को अब सिर्फ उसकी सेहत की परवाह थी। वो खामोश रहती, अपने काम से काम रखती। ज़ेबा दिन रात सिलाई में जुटी रहती। घर, बच्चे, सिलाई, मुराद, यही उसकी जिंदगी थी। एक चमकती उदास सुबह खुशी का पैगाम मिला। तारिक भाई की शादी तय हुई थी। वो भी शरीक हुई, सबसे खुशी से मिली। ज़ेबा, ये क्या हुआ तुझे? हड्डियों का ढांचा बन गई है। माँ ने उसे देखा तो अपनी हैरत ना रोक सकी। माँ मिलना चाहती थी, लेकिन ज़ेबा गुरेजा रहती। हाँ माँ, हड्डियां नजर आती हैं, इसीलिए तुम्हें एहसास हुआ। शुक्र है दिल दिखाई नहीं देते। उसने सोचा, कहा नहीं। आंसू जब्त करने में तो उसे मुल्क हासिल था। मैं ठीक हूं अम्मी, आपने बहुत दिन बाद देखा है ना। उसने हाशिर को सुलाने के लिए गोद में उठाया। तासुफ से उसको देखती रही। वो कुछ कहना चाहती थी, हंगामे रुकने का इंतजार था, लेकिन ज़ेबा दुल्हन को रुखसत करवाते ही अपने घर वापस आ गई कि मजीद नहीं रुक सकती। ज़ेबा सख्त मुशक्कत कर रही थी। वो बच्चों की पढ़ाई के मामले में भी बहुत सख्त थी। सीमा उसे देखती, वो मेहनत से जी चुराने वालों में से नहीं थी। भाभी, एक बात पूछूं? कहो। सीमा को पढ़ाई से लगन, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनती होने की गवाह थी, और कदरदान भी।
सीमा को देख देख कर वो नए सिरे से खुद पर अफसोस किया करती और फिर ज़ेबा को जिंदगी शनास करवाने का एहसास सीमा ने ही किया था और वो उसकी ज़ेरबार थी। आपने पढ़ा क्यों नहीं? आप तो पढ़ती थी, फिर आपने तालीम मुकम्मल क्यों नहीं की? शऊर नहीं था कि तालीम की सहूलत सबको नहीं मिलती। ज़ेबा ने आहिस्तगी से बोला, हाँ ये तो आपको पता है, जब मैंने पढ़ना चाहा तो सबने मेरा मजाक उड़ाया। सबसे पहले मेरी माँ ने, बहन ने, लेकिन उनका कसूर नहीं, वो खुद पढ़ी नहीं थी, तो उन्हें कैसे इल्म होगा कि इल्म की अहमियत क्या है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये शऊर दिया। इसी घर और इसी माहौल में पढ़ने के बावजूद मुझे आगाही हासिल है। सीमा कितनी समझदार थी। ज़ेबा ने उसे प्यार से देखा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के दुख को भी समझती थी। ज़ेबा को याद नहीं पड़ता था कि कभी सीमा ने अपनी माँ या घर में किसी से शिकायत की हो कि वो लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। वो कहती उन्होंने इसे इजाज़त दे दी, यही बड़ी बात है। मुझे मालूम है अब्बा की इतनी आमदनी नहीं कि महंगे कॉलेज में पढ़ा सके, उन पर और भी बहुत सी दूसरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो पुरअज़्म रहती कि एक दिन अपने ख़ानदान के ज़रूर काम आएगी और अपने ख़ानदान की आने वाली नस्लों के लिए तालीम के दर वाह करेगी। ज़ेबा को अपनी माँ याद आ गई और वही कहानी। उसकी माँ कितनी साबिर थी, पूरी ज़िंदगी शौहर से सिर्फ एक चीज़ की फरमाइश की, वो भी अपने लिए नहीं, बेटी के लिए। ज़ेबा के दिल को एक बार फिर किसी ने कुचला था। उसे माँ की कुछ कहती हुई आंखें याद आईं। वो ज़ेबा को मनाना चाहती थी, माफ़ी मांगना चाहती थी, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन ज़ेबा ने फिर कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया। ज़ेबा के आंसू एक बार फिर बेकाबू हो गए। नहीं, मैं आपको नाराज़ नहीं करूंगी, मैं आपसे जल्द मिलूंगी। उसने बेख्तियार एक फैसला किया। आंसू पहुंचे। वो कुछ माह पहले ही तारिब भाई की शादी पर गई थी। फौरन जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो जल्द जाएगी, अपनी माँ से मिलेगी, अब्बू से मिलेगी, पहले की तरह। क्या हुआ ज़ेबा, क्या हुआ? सहन के वस्त में सोते ज़ेबा के अब्बू की आंख सिसकियों से खुली थी। उन्होंने गर्दन उठाकर देखा तो बरामदे में तख्त पर ज़ेबा नीम दराज बेचैन सी थी और हिचकियों से रो रही थी। वो जल्दी से उसकी जानिब लपके। सितारों की चादर अब मध्यम सी हो गई थी। सफ़ेदी और स्याही के अलग होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। क्या हुआ ज़ेबा? उन्होंने इसका सर कंधे से लगाया और थपकने लगे। ज़ेबा, जो गुज़िश्ता रात माजी का अज़ियतनाक सफ़र तय करके आई थी, और वो हिचकियों से रोने लगी, हर बात से बेनियाज। अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, वो बेसाख्ता बोली थी। अब्बू, मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया था, खासकर अम्मी का। अब्बू, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे ही चली गई। और अब्बू अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर हैरान रह गए। वो अभी तक इसी गुमान में जी रही थी। माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए, तेरा कसूर इतना बड़ा नहीं था, और तेरी माँ तो कभी नाराज ही नहीं थी, वो भराई हुई आवाज में बोले। दूर होने की वजह से कभी ज़ेबा से खुलकर बात नहीं कर पाए। वो ज़ेबा के गुरेज को उसकी मसरूफियत और शादीशुदा जिंदगी के झमेले समझते रहे, लेकिन उन्हें अफसोस हुआ। ज़ेबा, मेरी जान, मेरी बेटी, उन्होंने प्यार से पुकारा। भूल जाओ सब, अब तो बहुत वक्त बीत गया। मेरी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ भी याद नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर दिया था। वो तो बहुत आला ज़र्फ औरत थी, इसीलिए पहले चली गई। वो तो कहती थी कि कभी अपनी ख्वाहिश का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डालना चाहिए, चाहे वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो। आज अब्बू ने कितने अरसे बाद ज़ेबा से यूं बात की थी। वो अब खामोशी से सुन रही थी। ज़ेबा, तुम्हारी माँ जब तारिक की शादी पर तुमसे मिली थी, तब से उसे यह एहसास खाए जा रहा था कि हमने तेरे साथ बहुत ज्यादती कर दी। वो बार बार मुझसे कहती कि ज़ेबा खुश नहीं है, ज़ेबा ठीक नहीं है। माँ के अपने लिए ये लफ्ज़ सुनकर ज़ेबा का दिल एक बार फिर कटने लगा। मैं कहता था तेरा वहम है। वो ठीक है, मुराद की माजूरी की वजह से परेशान ज़रूर है,
वैसे ठीक है, लेकिन वो कह रही थी माँ थी ना, मैं ही नहीं समझा। तारिक और उसकी बीवी सऊदीया चले गए तो वो बिल्कुल ही अकेली हो गई। 2 माह कबल उसे अंजाइना का अटैक हुआ। मैं तुझे फोन करने वाला था, उसने मना किया कि तुम बिला वजह परेशान होगी। उसकी बात ठीक थी, मैं रुक गया। काश फोन कर देता, इस बहाने तुम दोनों की मुलाकात हो जाती। वो एक तवक्कुफ के बाद बोले थे, अब्बू, मैंने तारिक भाई की शादी के बाद फैसला किया था कि यहां आऊंगी, आप दोनों से माफी मांगूंगी, लेकिन मुझे देर हो गई। अब्बू, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, बहुत। वो फिर रोने लगी। नहीं, ऐसे नहीं कहते, तेरी माँ को तकलीफ होगी। अगर तू वाकई अपनी माँ से प्यार करती है तो भूल जाओ सब कुछ, नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। वो भी यही चाहती थी। उन्होंने प्यार से इसे समझाया। साथ ही अजानों की आवाज गूंजी। अब्बू, नमाज पढ़ लें, फिर मैं चाय बनाती हूं। ज़ेबा ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, नमाज अदा करते हैं, अपनी माँ के लिए दुआ करना, फिर मैं चाय बनाता हूं अपनी बेटी के लिए और हलवा पूरी लाता हूं मस्जिद से आते हुए। उन्होंने ज़ेबा से कहा। जी अब्बू। ज़ेबा की आंखें बार बार भीगती थीं। इस मोहब्बत और इस मान की आदत ही कहाँ रही थी। पूरे हफ्ते ज़ेबा वहां रही। अब्बू भी अकेले थे। ज़ेबा ने कहा कि वो उनके साथ चलें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैं जल्द आऊंगी अब्बू, ज़ेबा ने उनसे वादा किया था। नन्हे हाशिर और मुस्तफ़ा भी अपने नाना अब्बू से दूर जाने पर उदास थे। अपना ख्याल रखना ज़ेबा, बच्चों का भी, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल देना, उन्होंने दस्ते शफकत से उसके सर पर रखते हुए कहा। ज़ेबा मुस्कुराई। अब्बू, जो चीज़ मुझे इस घर से आपसे चाहिए थी वो था आपका प्यार, आपका साथ, वो मुझे मिल गया है। मैं तो ऐसे ही बहुत बहादुर हो गई थी, आपका साथ मिलने से और हो जाऊंगी। ज़ेबा ने मुस्कुराकर सोचा, कहा नहीं। कल की नादान, ख्वाबों में रहने वाली बेवकूफ़ ज़ेबा आज एक समझदार और मजबूत औरत थी। बरसों से वो जिंदा नहीं थी, सिर्फ सांस ले रही थी, लेकिन अब उसने दिल में बहुत से इरादे बनाए हुए थे। सीमा ने उससे कहा था, आप अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करें, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। उस वक्त उसने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब उसने दोबारा तालीमी सिलसिला शुरू करने का सोचा था। कुछ नहीं, कम से कम अपनी माँ की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगी। अब उसने सोच लिया था, वो जिंदगी जिएगी ऐसे जैसे उस पर फर्ज था, ऐसे जैसे जिंदगी का हक है कि उसे जिया जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।